Okay, good morning students and welcome on the platform of RTS online class. Today I am going to just revise this topic because some of students who need the complete topic from the beginning of the electricity syllabus. So today I am just going to revise the important topic which is important to cover in the electricity session or electricity chapter. The first of all, I am going to introduce about electric current as the name of your chapter is electric current. Here the term electric and current. I think current, the word current is already known by all of you. Current just flow of something. But in this section, in this sector, in the electric current section, the electric current is just defined as like electric current is just defined as the flow of charge for unit time. Here electric current Z, that is denoted by I, and it is defined as the flow of charge per unit time. Okay, all of you are known about this formula and this derivation, but in the revision session, I need to explain about this charge in the defining of this session. This topic. I am using the word charge. Okay, I am using the word charge. It means what will be charged, how it can flow, and how it will produce. These two or three words is very important to understanding this topic. So first of all, we have to understand or get information about charge. After that, we will continue the next topics. So here I am going to explain about charge. Charge is nothing but the property of. Okay, what I am just listen carefully. What I am going to say. Charge is the basic property of fundamental particle of any matter. What I am saying? I am saying that charge is the basic property of fundamental particles of any matter. You are very well about the matter. तुम सब मैटर थोड़ी ऑलरेडी समझ रहे हैं. मैटर जैसे केमिस्ट्री में हम लोग जो पढ़ते हैं दैट इज ऑलरेडी नोन. बट यहाँ जो हमने लिखा है कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर बाय विच यू कैन ऐड बाय which it can experiences the force of attraction or repulsion. ठीक है, यहां हमने लिखा चार्ज. एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने में हमने एक टर्म यूज किया, इलेक्ट्रिक करंट इट मींस फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. जब हम लोगों ने फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम वहां पे यूज किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट चार्ज. आई मीन चार्ज क्या है उसके बारे में हमें जानना जरूरी होता. तो इसलिए हमने चार्ज को बताया कि चार्ज क्या है. तो चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर बाय व्हिच इट कैन एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. मतलब ये चार्ज क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी है. बेसिक प्रॉपर्टी है किसकी, फंडामेंटल पार्टिकल की. तो यहाँ पर तुम्हें यह इंपॉर्टेंट होगा कि यह फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, इसे समझना होगा.
होगा व्हाट इज द फंडामेंटल पार्टिकल. द फंडामेंटल पार्टिकल एसोसिएटेड विद व्हाट, एसोसिएटेड विद द ईच एंड एवरी मैटर. इसका मतलब यह है कि जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मैटर्स, उस किसी भी मैटर का यह फंडामेंटल पार्टिकल होगा. इस मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल मतलब उसके सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट पे आ जाइए. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर. यू ऑल ऑफ यू आर वेल and able to understand about the smallest part of any matter. I think that is atom. जब हम लोग बात करते हैं एटम की, तो उस एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होगा, ठीक है, उस एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल है, बेसिकली हम लोग ऐसा जानते हैं कि वो जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ओके, ऐसे इसके अलावा भी meson, pi meson, positron, mu meson, etc. are the particles, but that is not the fundamental particles. That is associated with this electron, proton and neutron. So इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम लोग उसके फंडामेंटल पार्टिकल मानते हैं. अब इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का यह बेसिक प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से यह जो है अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है. जैसा तुम सब जानते हो, ये इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है. कितना होता है? तो -1.602 into 10 to the power -19 कूलम. कि इस इलेक्ट्रॉन का फाउंडर कौन था? ठीक है, यू हैव टू जस्ट गैदर सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस फंडामेंटल पार्टिकल एंड पोस्ट द रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन योर इवनिंग सेशन. इस इलेक्ट्रॉन के फाउंडर कौन है? इलेक्ट्रॉन के फाउंडर कौन है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? दिस ऑल इंफॉर्मेशंस आर ऑलरेडी डिलीवर्ड बाय द टीचर, आई मीन केमिस्ट्री टीचर इन योर सब्जेक्ट, एंड दैट इज वेल नोन टू मेंशन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द रिक्वायर्ड सेशन इन द साइंस. सो इलेक्ट्रॉन एंड अनदर वन दैट इज प्रोटॉन. प्रोटॉन पे भी चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना ही होता है, 1.602 into 10 to the power -19 कूलम, बट ऑफ मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, उसका नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा प्रोटॉन पे. न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन में चार्जलेस होता है, देयर इज नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन बट हैविंग सम मास. ओके, सो इलेक्ट्रॉन के फाउंडर जे थॉमसन है, प्रोटॉन के फाउंडर ई गोल्डस्टीन है, एंड न्यूट्रॉन के फाउंडर जेम्स चैडविक है. ठीक है, इन सारे इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करते हुए हम लोग आगे के क्लासेस में बढ़ेंगे. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द ये मीनिंग ऑफ चार्ज. व्हाट इज चार्ज? द चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर. किसी भी मैटर के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फील करता है, उसे हम लोग उसका चार्ज कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट और आता है, क्या चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है? बिकॉज वन थिंग, ईच एंड एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. आर यू ऑल आर आई मीन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जितने भी मैटर होंगे, जितने भी मटेरियल्स है, आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, जो कुछ भी है, जहां भी है, उस पे यह चार्ज नॉर्मल स्टेट में, अगर वह एटम नॉर्मल स्टेट में होता है तो उस पर यह चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता है. इसका वजह क्या है? जस्ट अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं विद एन एग्जांपल. वन थिंग इज इलेक्ट्रिक करंट के डिफिनेशंस को, जैसे कि यहां हम लोग देखे हैं, इस चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम C होगा और टाइम का जो यूनिट होता है CS. सो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वह हम लिख सकते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज I इक्वल्स टू Q, वहां से लिख रहा हूं मैं QT, और इसका यूनिट होता है C कूलम, और इसका यूनिट होता है S. सो यह यूनिट जो है कूलम पर सेकंड और कूलम सेकंड ऐसे यह भी लिख सकते हैं. ठीक है, कूलम पर सेकंड और ये. बट जिस साइंटिस्ट ने इस चीज को, मतलब ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु गिव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस थिंग, द प्रैक्टिकल यूनिट इज एम्पीयर. ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट करंट का क्या है? एम्पीयर है. और इसे डिराइव यूनिट की बात करें तो क्या है? कूलम पर सेकंड है. ओके, so I think this is the introduction part of charge.
After that we will introduce the property of charge in this section. चार्ज के जो यूनिट है वो है कूलम, टाइम का जो यूनिट है वो है सेकेंड। इसकी वजह से जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट फाइंड आउट करेंगे तो वह इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हो जाएगा कूलम पर सेकेंड, बट प्रैक्टिकली हम लोग यूज करते हैं क्या, एम्पीयर। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में फर्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज की प्रॉपर्टी है जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया। अब चार्ज की प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ते हैं कि चार्ज इज कंजर्व। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व। सेकेंड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। Okay, third one is like charge, repel, whereas unlike charge attract. Okay, and the fourth one is charge is a scalar quantity. ओके, चार्ज कंजर्व होता है, इट मींस जैसे हम लोग ना 9th क्लास में पढ़े थे, या ये जैसे मोमेंटम कंजर्व होता है, एनर्जी कंजर्व होता है। ऑन द सेम बेसिस द टोटल चार्ज ऑफ दैट बाउंडेड रीजन इज सेम बिफोर लॉस और गेन एंड आफ्टर लॉस और गेन। ठीक है, तो इस तरीका से यह चार्ज की जो चार्ज का जो वैल्यू है वह कंजर्व होगा, जिसे हम एक एग्जांपल में एक्सप्लेन करके बताएंगे तुम्हें। क्वांटाइज की बात जो है, क्वांटाइज का मतलब ये हुआ कि व्हेन चार्ज विल प्रोड्यूस, आई मीन व्हेन लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस, it means one and only integral part of electron will take place. There is no meaning of half electron, 1/4 electron and 3/6 or 3/2 electron. Okay, so जब भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा एक दूसरे के बीच, तो कंप्लीट 1 electron, 2 electron, 3 electron or n electron will share. There is no any meaning of half or 1/2 or 1/3 or 1/4 electron. Okay, so mathematically you can write this statement quantized, the charge is quantized. It means Q is equals to NE. Here Q is equals to NE means this N is the number of electrons and this E it means charge on an electron. Charge on an इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, होता है 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम। ठीक है, and Q, what is this Q? This Q is total charge ट्रांसफर, कितने चार्ज शेयर हुए उसकी वैल्यू होगी Q। ठीक है, लाइक चार्जेस का मतलब यहाँ ये हुआ, लाइक चार्ज का मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, फिर एक चार्ज पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा प्रोटॉन है, और यहाँ एक प्रोटॉन है दूसरा एक प्रोटॉन है दूसरा इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा प्रोटॉन है, तो यह क्या करेगा, यह अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट मतलब आकर्षण, खींचेगा अपनी तरफ, ये जो है रिपेल करेगा, दूसरे को दूर करेगा। ठीक है, तो ये हुआ इसकी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। यह चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज बेसिक और रिक्वायर्ड फॉर गिविंग और आंसरिंग योर क्वेश्चंस। ओके, ऑन दिस बेसिस वी विल solve some examples or solve some numericals. Okay, so just come on the next session, I mean next explanation about the conservation and quantization. These two things is very important, so I am going to just introduce about this. Okay.
कम। As you know, I'm explaining about the here I'm going to explain two property of charge. The first one is charge is conserved. The second one is charge is quantized. Okay, so just go through this example. First, I am taking an example like Na. It is sodium. Okay, and the atomic number of sodium is 11. जैसा कि तुम सब केमिस्ट्री क्लासेस में पढ़ते हो कि अगर किसी एटम के अगर जैसे यहाँ हमने एटॉमिक नंबर 11 लिखा है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11। अब देखिए जो दूसरी बात हम लिखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखे जाए, ई कॉन्फ़िगरेशन अगर लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 and 3s1 2 2 4 16 and 1 11। okay, what is electronic configuration? The electronic configuration is nothing but the arrangement of electron in its orbitals। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, उसके सेल सबसेल जो भी है, इसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। हियर हमने लिखा उसका ये SPDF फॉर्मूले के 11 में जैसा कि पढ़ते हो, बट मोस्ट एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दैट 1s2 2s2 2p6 3s 3p 14 ऐसा करके लिखते हैं। तो इसमें हमने लिखा इसके लिए। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होगा कि कोई भी एटम स्टेबल होना चाहिए, और स्टेबल होने के लिए कंडीशन क्या है? द मेन कंडीशन इज दैट कि आइदर द डुएट, आई मीन उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो, या वो वैकेंट हो, या 2 इलेक्ट्रॉन हो, या ऑक्टेट पूरा हो। तो यहाँ पर देखिए जो आउटरमोस्ट, देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकेंड और ये थर्ड। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 6 to 8 है, बट यहाँ पर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। इट मींस Na is unstable. It is like to either donate or accept, but we will see the next statement like ये donate करेगा कि attract करेगा, receive करेगा, उसे देखिए। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं Cl का, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ओके 17। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17। अब एक चीज देखो, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 11 है, या 11 अगर नेगेटिव नेचर, दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर तो सेम ही चार्ज होते हैं, बस उसके मैग्नीट्यूड एक नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ ये जितना इलेक्ट्रॉन है, अगर ये सारे के सारे नेगेटिव है और यह प्रोटॉन सारे के सारे पॉजिटिव है, तो नेट चार्ज की अगर बात करोगे, नेट चार्ज की बात करोगे, तो यह नेट चार्ज कितना आएगा? उसमें जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, नेट चार्ज उसके 0 हो जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ से 17 और 17 थे, 17 नेगेटिव 17 पॉजिटिव, और 17 into 1.60 to 10 minus 19 कूलम दैट इज नेगेटिव, एंड 17 into 1.60 to 10 minus 19 कूलम दैट इज पॉजिटिव। तो इट विल आल्सो 0। सो हम लोग कह सकते हैं, एक स्टेटमेंट अपने पास आता है क्या, कि कोई भी एटम जो है, कोई भी एटम जो है नॉर्मल स्टेट में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यह जितने या पॉजिटिव, यह इलेक्ट्रॉन्स में जितने चार्ज नेगेटिव या उतने पॉजिटिव, और इसके वजह से यहाँ भी हम लोग देखें तो यह तुम्हारा -70 into 1.602 into 10 to the power -90 कूलम, और यह 17 into 1.602 into 10 to the power -90 कूलम। तो देखिए इस दोनों के वैल्यू जो है, बस यहाँ नेगेटिव वाला और ये पॉजिटिव वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा, नेट चार्ज होगा 0। ठीक है, इसका मतलब ये क्या बताता है कि यह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है।
इज न्यूट्रल है। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू फ्रॉम these examples and explain about how the charge will produce and the what is the process by which we can calculate the how much amount of charge will produce. Okay, so we will continue in the next session. Okay, thank you.